Hello everyone, this is Dr. Nadi here, and today basically we are back for the fourth year guidelines. I have made orthopedic module guidelines, reproductive module guidelines, and this is a brand new video representing ENT module guidelines. And it's gonna be super short. And if you haven't subscribed to my channel yet, you're most welcome on this new page, and just subscribe it, get along with it. We'll be a big family soon. So let's just continue this. Now, basically talking about ENT. The basic theme of this ENT module will be, in short words, only one book. यहाँ पर कोई anatomy, physio, patho का कोई ऐसा scene नहीं होगा. This is the easiest module in terms of listening to the guidelines. करने में easy नहीं है इतना. Plus the combination of your one book, you have to select just one book, and your past papers. अगर book ना भी पढ़ोगे, सिर्फ past papers भी करोगे, I'm definitely gonna say that टॉप तो नहीं करोगे, अच्छे मार्क्स तो नहीं आएंगे, बट ऑब्वियसली गोना गेट द पासिंग मार्क्स ऑफ कोर्स 60% 70% ईजिली आ जाएंगे वंस यू आर done with your past papers. So past papers extremely important for this one ENT के. Plus past papers आपको सही answers you have to find out for the past papers. I would really love to give shout out to MedLinks. This is the one medical educational website which my friends have, my batchmates have. They have founded this, and it is an amazing one. I got a premium package from them, and that was amazing literally, and it saved me a lot of time for that. So for this, now for ENT thing, past papers तो आपको online भी मिल जाएंगे, PDFs भी मिल जाएंगे. ENT में you have to, first of all we're going to talk about the books. ठीक है, the basic thing is that books आपके पास ENT की सिर्फ दो हैं. The first is, okay, now everything is screwing up. The first book basically we're going to have is, the one is Dingra. This is the long book, and anybody जिसको ENT में specialization करनी है, the most welcome person. The second book is basically Udaipur Wala. Udaipur Wala is a lifesaver, and it is sufficient. With the past papers, it is the best combo I can ever say. This is the first thing we are done with, what books to do, and I am only here with just one book. You have to cover this whole book to get access plus past papers, and you are top on the world. ठीक है, this is the easiest thing. But then you have the most important thing कि अब ENT में there are three things: ear, nose and throat. इन तीनों में पहले कौन सी चीज़ उठाएं? Because okay, so there are two aspects of it, this strategy, right? Ear, nose and throat में आपने first of all वो चीज़ उठानी है जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट आ रहा है, ear में, nose में, throat में. Second thing आपने प्रायोरिटी देनी है कि पेपर 50% 60% किससे आता है. So the answer is ear. मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग एनुअल्स में ENT कंप्लीट किया था. फॉर माई मॉड्यूल्स मैंने सिर्फ एयर किया था, मैंने नोज और थ्रोट नहीं किया था, एंड आई लिटरली गॉट 70% मार्क्स इन दैट. सो इट वर्कड फॉर मी अलॉट. एनुअल्स में सोचो फिर जब मैंने ये तीनों कंबाइन किया तो कितने अच्छे मार्क्स आए होंगे. सो लेट्स जस्ट गो बैक टूवर्ड्स दिस उदयपुर वाला. व्हाट आई एम गोना डू इज दैट उदयपुर वाला में फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट एयर का यू हैव completed all of your concepts. After that, okay, एयर के concepts हों, नोज के concepts हों, थ्रोट के concepts हों, there is only one recommendation of my videos, that is Selfless Medicos. This girl is wonder girl, Wonder Woman, because the way she explains is so incredible. This is a YouTube channel है उनका बहुत अच्छा. So just go watch it, and then after watching those videos, वो जो topic पढ़ा रही हैं, after watching one video, just open this make your clear concepts, and then open it, read it, and then highlight the important points. That's it. That is it. ठीक है. So once we are done with it, let's just move towards, I want to tell you guys that एयर में सारे चैप्टर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. कौन से चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 50%. तो पहली बात सुन लो, सबसे पहले एयर ENT में सबसे इंपॉर्टेंट इज एयर, पहली बात. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट एयर में भी और नोज और थ्रोट में भी पूरे चैप्टर्स में से, लाइक 16 चैप्टर्स में से कोई 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे पूरा पेपर बनता है. सो हर में से आई एम गोना गो थ्रू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी ऑफ द एयर की जब हम बात करेंगे, जस्ट अ स्मॉल, ठीक है, रिकैप. एनाटमी ऑफ द एयर में ऑफ कोर्स यू हैव टू रीड इट. सिर्फ एक सिंगल रिव्यू और एक व्यू देना है, आंख उठा के बस एक तरफ देख लेना है एनाटमी रिवाइज करने के लिए. प्लस अपने जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो थोड़े से अच्छे याद कर लीजिएगा. इनर ईयर की एनाटमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ इट, यू आर डन विद इट. फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग मैंने नहीं की थी बिकॉज मुझे आती थी, बट इफ़ यू वांट टू डू इट, डू दैट. क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एयर वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एग्जामिनेशन आती हैं, बट थ्योरी के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जस्ट 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर.
the one thing is very important, that is Rennie's test and Weber's test. Make your concepts clear on Rennie's test and Weber's test. These tests are extremely important. ये एग्जाम्स में आते हैं, रट्टा मारने की नीड नहीं है. सेकेंड थिंग, ओके सो दिस इज द ओनली थिंग इन दिस थिंग. अच्छा, व्हाट हैपेंस इज जब एग्जाम नियर आता जाता है, यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड दैट जितना एग्जाम ज़्यादा आता आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर में हर चीज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. लाइक द मोर यू आर क्लोजर टू योर एग्जाम्स, जस्ट रिवाइज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ईयर आर लाइक 4, और उनमें से पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑडियोमेट्री. दिस वॉज एक्सट्रीमली न्यू टू मी बिकॉज मैंने कभी ऑडियोमेट्री का नहीं पढ़ा था, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू आर गोइंग थ्रू द वीडियोज ऑफ सेल्फलेस मेडिकोस. शी एक्सप्लेन्स इट वेरी नाइसली. प्लस उसमें जो आपके पास है फ्रीक्वेंसीज याद रखनी है. मेक श्योर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने की है कि ग्राफ्स यू हैव टू रिमेंबर, मतलब थोड़े से दिमाग में रखिएगा. सेकंड थिंग दैट इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री हो गई, और ऑटो अकाउस्टिक एमिशंस, और ये जो बेरा हो गया सारा, ठीक है, ब्रेन स्टेम इन्वोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री. यू हैव टू रिमेंबर इन व्हाट पीपल दे आर यूज्ड, व्हाट आर द इंडिकेशंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस कि उसमें ये यूज़ नहीं होगी, उसमें ये यूज़ होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो ये आपके पास आ चुका है. सेकंड, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस ऑफ द ईयर को मैंने सिर्फ एक नज़र देख लिया था, नॉट इम्पॉर्टेंट. इंजरीज इन्वॉल्विंग ईयर को भी जो है ना, मैंने एक नज़र देखा था, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट. किस तरीके से बताती हूँ. ऑल दोस इटालियन थिंग्स, ठीक है, कॉलीफ्लावर एयर जैसे इटालियन में लिखा हुआ है राइटिंग में, दे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दे कम इन एग्जाम. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, बहुत ईजी है, जस्ट अ वन लिटिल रिव्यू आपका हो जाएगा. सेकंड थिंग, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी पैराग्राफ है, इसमें से मेरे बहुत से एमसीक्यूज हो गए थे. द लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर्स द कॉमनेस्ट टाइप और कौन से एक्सेस में होगा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो ये यू हैव टू गिव इट जस्ट अ वन रीड, दैट्स इट, यू विल बी डन. देन डिजीजेज ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, ऑडियोमेट्री वाज माई फर्स्ट चैप्टर जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था. द सेकंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर इज दिस डिजीजेज ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट्स इट. हर चीज़ इसकी याद रखनी है, ठीक है. इचिंग इज द फर्स्ट सिम्टम, हर चीज़ याद रखनी है. क्लिनिकल फीचर्स याद रखने हैं. डिफरेंशियल डायग्नोसिस, देयर आर सो मेनी डिजीजेस टुगेदर ऑफ एयर कि यू हैव टू एग्जैक्टली रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. दे विल बी केसेस इन योर एग्जाम, ठीक है. और बेसिक बेस्ट बात क्या होगी, जब व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग योर पास्ट पेपर, ठीक है, उसमें से कोई क्वेश्चन आया है, वंस यू हैव रेड इट, वो पास्ट पेपर की जो चीज़ पूछी गई है उसको एक परफेक्ट specific color of highlighter से mark कर लें, so that basically again when you are revising for your annuals you don't have to go for the past papers, you just have to see कि अच्छा ये चीज़ है asked in the past papers and that's very important. So these are very automycosis is extremely important. ये सारी malignant, ये सारी चीज़ें. वेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉम्पोजिशन और वेक्स को रिमूव करने का सिरिंजिंग ऑफ द ईयर भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत चीज़ें पूछी जाती है. देन इसके बाद है ऑटाइटिस मीडिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर अबाउट एक्यूट, क्रॉनिक, एटिकोएंट्रल स्टेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत आते हैं. क्रॉनिक ऑटाइटिस मीडिया में ट्यूबोटिम्पैनिक, एटिकोएंट्रल पिक्चर्स के साथ याद रखना है. अच्छा होता है, बहुत ईजी होता है, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, ओके सो ये थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी. देन वी हैव ऑटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन एंड एरोआइटाइटिस. इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होती है लोगों की, सो मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर बिफोर गोइंग. कॉन्सेप्ट्स बनने चाहिए, ठीक है. देन वी हैव कॉम्प्लिकेशंस. इसको भी मैंने इसको ऊपर से रीड किया था, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, दैट्स इट. न्यू प्लाज्मा ऑफ द एयर वॉज इंपॉर्टेंट, आई रेड इट वेरी थरली, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है. इसके नाम बड़े अच्छे हैं और ये एक ही थोड़ा सा है, रीड हो जाएगा. ऑटोस्क्लेरोसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वो पिछला वाला इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये ऑटोस्क्लेरोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड ये बहुत छोटा है, यू विल बी डन विद इट. ऑटोस्क्लेरोसिस में ये फाइंडिंग सारी जो ऑडियोमेट्री की हैं, यू हैव टू बी थरो विद इट. देन वी हैव वर्टाइगो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए. इसके लिए इनर ईयर एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. एंड इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो है मेयनर्स डिजीज़. मेयनर्स डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें कोई ट्रायो 3 चीज़ों का होता है, टिनाइटिस, डेफनेस, और ये बहुत पूछा जाता है. एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो. ये अलग अलग केसेस में आपको टेस्ट करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद सेंसरी न्यूरोनल डेफनेस में सिनाइल डेफनेस और प्रिकैसिस जो भी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नॉइस इंड्यूस डेफनेस, ये जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट्स हैं इनको रिव्यू दें. एंड इडियोपैथिक सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. तो ये जो 2 चैप्टर्स थे ना, वर्टाइगो और सेंसरी न्यूरोनल डेफनेस, इन दोनों की कंबाइंड केसेस आते हैं, तो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट. तो दोनों पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फेशियल नर्व पैरालिसिस मैंने छोड़ दिया था बिकॉज पेपर में इतना आया नहीं था और मुझे पहले से आता था इतना. ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन, समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट, समटाइम्स इट्स नॉट, बिकॉज ऑडिटरी ट्रेनिंग में बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट किस तरीके के डेफ को होगा और कौन सी इंडिकेशंस हैं. तो थोड़ा सा एक नज़र रीड, दैट्स इट, वंस यू आर डन विद.